Hello Blossoms, welcome back to my channel. How are you? Hope everyone is doing great and fine. Firstly, I'm so sorry that my video is coming so late. I was just stuck in some situations and the thing I was making, it was taking a great time to get ready. So I'm so sorry for that. And secondly, many were of you asking the meaning of my channel name. So today I would be uncovering it and not taking much time, just few minutes. So let's get started. So the day I decided of making the YouTube channel, the first thing that came on my mind was the name. I wanted really a unique name, something you can say बहुत ज़्यादा हटके, so that the people would be curious about it, that what is it and what type of video would be uploaded on this channel. So with this intention, I searched every possible search engines, Google, Pinterest, and different types of gardening names, their synonyms. So after a search of hours, I got a name that was Maisa. Maisa is basically a Swedish word which means to be engaged in an activity which gives you comfort, pleasure, right? So this meaning was something I can relate to it. I was relating to it. So this is how I was like, yeah, I need this name and it is something relatable to me. I can connect with it so that the people would also connect to it, right? So this is how I came up with my first word, that was Maisa. Then Maisa is not only the thing that was giving spark to my channel name. So for that I was searching something relevant to these things, to gardening. So I got two names, that was Bloom and Hub. Bloom is basically flourishment, flowering, right? And Hub is like, this is the place you need to stop and watch. What is it? What is it inside? So that would be getting a great knowledge about gardening over there. So this is how I kept my channel name Maisa Bloom Hub. So yeah, that's it, and hope you guys find it enough worthy that about my effort to this channel name, and hoping for more encouragement from you people and more people to join this beautiful family Maisa Bloom Hub. So for that, please guys do share, comment, like, subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you would be getting a notification whenever I would be uploading the video. So let's get started to the video now. Today's video, it's not about something you can say knowledge. It's a funny tiny video. You would be enjoying it. So we would be making pot of cement, and it's not a normal pot. It would be a cute pot, and I won't disclose right now that what is it, which type of pot is it. For that you need to watch the full video. And also guys, secondly, why do you need to watch this full video? Because I made many mistakes while making this pot. So I would be telling you the important points, that where you need to do what. So for that you need to watch the full video. So yeah, let's get started to the video now. सो सबसे पहले हम सैंड लेंगे और इसका जो मिक्सचर है वो हम सेमी सॉलिड रखेंगे, ताकि जब इस मिक्सचर को हम अपने बोल में डालें तो वो एक प्रॉपर शेप लेगा जब हम इसको फिल्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है और इसको हल्के से रिमूव कर देना है। Same goes with the second one and so on. इस तरीके से हम अपने 4 ब्लेंडर्स तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सीमेंट लिया है और इसका जो हम मिक्सचर लेंगे वो भी सेमी सॉलिड ही लेंगे, और हल्के हाथों से हम अपने ब्लेंडर में इसको स्प्रेड कर देंगे इवनली। अब मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर्स लिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो करीबन 4 से 5 सेंटीमीटर है, और टोटल हमने 9 वायर्स लिए हैं, 2 इन ईच प्लांटर एंड 3 इन फ्रंट वन, बिकॉज वहाँ पे हमारा फेस अटैच होगा, और इसको सीमेंट से कवर कर देंगे। अब ये मैंने वुडन स्टिक्स ली हैं और इसको मैं अपने प्लांटर के सेंटर में लगा दूँगी ताकि होल बन जाए।
अब हम फेस बनाएंगे। इसके लिए हमने कोई भी रफ़ क्लॉथ लिया है और उसमें हम अपने सीमेंट के मिक्सचर को पोर आउट करेंगे और इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक रफ़ राउंड शेप देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ सुतली हम इसको टाई अप कर देंगे और करीबन 10 से 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा सेट हो जाए। अब हम अपने प्लांटर की दूसरी लेयर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2:1 लिया हुआ है सीमेंट और सैंड का और इसको हम अपने प्लांटर में इवनली स्प्रेड कर देंगे। नाउ 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये हल्का सा सेट हो चुका है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसको एक हम राउंड शेप देंगे और इसको हम अपने 3 वायर्स जहाँ पे हमने लगाई हुई थी प्लांटर्स के वहाँ पे हम इससे उसको अटैच कर देंगे और एक प्रॉपर शेप दे देंगे और इसके बाद हम कोई भी सपोर्ट लेंगे और इसको लगा देंगे नीचे ताकि वो अटैच हो जाए। अब हमने एंटीना बनाना है तो इसके लिए मैंने 2 एल्यूमिनियम वायर्स ली हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक एंटीना का शेप देने के लिए। सेम गोज विद द सेकेंड वन। अब हम इसकी आइज़ बनाएंगे और इस तरीके से हम अपने हैंड में रब करेंगे और एक सर्कुलर शेप देंगे आइज़ को और इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। सेम गोज विद द सेकेंड वन। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। उसके लिए हम दोबारा से वही सर्कुलर शेप ले रहे हैं और अच्छे से इसको हम चिपका देंगे। फिर इसकी दूसरी लेयर है कैप की। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा इसकी आईज, हेड एंड एंटीना। अब हम इसका माउथ बनाएंगे। माउथ के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप चूज़ कर रहे हैं और इसको अच्छे से शेप देने के बाद हम इसमें अटैच कर देंगे। नाउ टाइम फॉर थर्ड लेयर्स। यहाँ पे मैंने सीमेंट की एकदम वाटरी लेयर ली हुई है और इसको हम अपने प्लांटर में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि जितनी भी अनइवन जगह है वो अच्छे से भर जाए और विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम इसको अच्छे से लेवल अप कर देंगे। ऑल्सो गाइज मैंने यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पे इसका हेड अटैच कर दिया कैटरपिलर का, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था बिकॉज़ जैसे ही हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये जो इसका हेड है वो उल्टा हो जाएगा। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका फर्स्ट वाला प्लांटर है वहाँ पे आपको 3 एल्यूमिनियम की वायर को अटैच करके रखना है। बाकी जब ये सूख जाए उसके बाद आप इसका हेड बनाइएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था जब मैंने इसका हेड डी अटैच कर दिया था। काफ़ी मेहनत लगी इसको अटैच करने में। खैर, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इनके लेवल्स हैं ये थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सीमेंट मैं इनकी सारी लेवल्स को बराबर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये अब बराबर हो चुके हैं, इनके सारे बेस बराबर हैं सारे प्लांटर्स के। तो जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद जितनी भी ये लकड़ी हमने लगाई थी इन सबको हम हटा देंगे और जितनी भी हमने इसमें सैंड भरी हुई थी उसको भी हम हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो समहाउ आई मैनेज दिस अप। और सूखने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर इसकी सारी जितनी भी रफ एजेस हैं उन सबको हम स्मूथ कर देंगे। ओह हाय, हियर कम्स मी। So with this paint, we need to paint this up.
So this is how it turns out.